Good morning, students. So before starting today's topic, let's recall the things which we have learned yesterday or which we have discussed in the last lecture. So but in the last lecture we had discussed about distribution of vegetation, and in that we have learned the four type of vegetation. Okay, first, forest means we know very well that a forest vegetation, these type of vegetation found in the heavy rainfall areas na, and in these type of vegetation the height of the size of tree is very long na, and very dense also. And the next type, the yes, grassland also we have learned, and in that we have learned that here the moisture and the rainfall decreases na, and the size and the dense of the forest also decreases in comparison to forest vegetation. And the third one is scrubs. Also we have learned that the scrubs type vegetation found in the desert area and the dry region where very low rainfall. Okay, and the next thing, tundra vegetation also we have learned that tundra vegetation found in the cold region, means where the most of the area is covered by snow. And the next thing what we have learned that the forest we can divide it into two parts, first evergreen and the second one is deciduous forest. So if we talk about evergreen, means they do not shed their leaves in a particular season, means they shed their leaves by rotation. Okay, and the next deciduous means they shed their leaves in a particular season, means when the summer season started, means जो ट्रीज की लीव्स होती हैं उनमें स्टोमेटा होता है, आई थिंक इन साइंस यू हैव रेड दिस, और वो जब इवेपोरेशन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है समर सीजन में, तो वो क्या करते हैं अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन को रोकने के लिए. सो दिस मीन्स डेसिडिशियस दे शेड देयर लीव्स इन अ पार्टिकुलर सीजन, मीन्स एक पार्टिकुलर सीजन में जो ट्रीज होते हैं, जो डेसिडिशियस फॉरेस्ट होते हैं, वो विदाउट लीव्स हो जाते हैं. एंड इन द नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्नड दैट डेसिडिशियस देयर आर टू कैटेगरीज. फर्स्ट, the tropical deciduous means where the high temperature found, means in the hot region this type of deciduous forests are found. And the second, temperate means in the moderate temperature the deciduous means temperate deciduous forests are found. So all these things we have learned yesterday. So let's start today's topic. So see the last part of this chapter. So see beta, conservation of natural vegetation and wildlife. Now we know very well that these wildlife means animals and vegetation means plants and trees are very useful for us now, because already we have learned their uses. So they play an important role in our life, a very important role in our life, so we have to conserve those now. So but they, some problems are there, some causes are there. So ड्यू टू दोज कॉजेज दे आर डिप्लेटिंग डे बाय डे, मीन्स वो कम हो रहे हैं दिन पे दिन. सो व्हाट आर द कॉजेज? फर्स्ट क्लाइमेटिक चेंज एंड सेकंड इज ह्यूमन एक्टिविटीज. फर्स्ट क्लाइमेटिक चेंज कैसे कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इन द क्लाइमेट. अब क्लाइमेट में चेंज क्यों आता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. अब ह्यूमन्स अपने लिए क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज बहुत सारी सेटअप्स कर ली है, मीन्स अपने सेल्फिश के लिए वो क्या करते हैं कि ट्रीज को कट कर दिया, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर दिया, जिससे क्लाइमेट में चेंज आया है. और बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे हंटिंग के लिए वो एनिमल्स को हंट करते हैं, या फिर ट्रीज़ को एक्सेसिव कट करते हैं, तो जिससे क्या है कि ये वाइल्ड लाइफ और जो वेजिटेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डे बाई डे. सो वी हैव टू कंजर्व दीज. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. वी नो वेरी वेल दिस now, but some problems are there in front of these. First, changing climate, and the second, human interference, because human, for their benefit, for their selfishness, they interfere in these means animals life and the vegetation. Causes of problem. So what are the problems? Those means those arise due to this interference and the climate change. So let's discuss the problems. First problems, loss of natural habitat. Now हैबिटाट मीन्स जो शेल्टर है उनका, जो मीन्स जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, वो कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, वहीं पर शेल्टर होता है ना उनका, कि जहाँ पर वो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपना फ्रीली वहाँ पे सर्वाइव करे. बट क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जो ह्यूमन्स हैं, वो अपने मीन्स अपने बेनिफिट के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ के लिए वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, जिससे बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया क्या है, क्लियर हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है. और जहाँ पे क्या है कि जो पहले जो वाइल्ड लाइफ, जो एनिमल्स जो वहाँ पे रहते थे,
अब उनका क्या हो चुका, वो हैबिटेट लॉस हो चुका ना, मीन्स उन्होंने अपना हैबिटेट खो दिया है. सो फर्स्ट लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट ड्यू टू कटिंग ऑफ वेजिटेशन, ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एरियाज. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस कि अब उनको क्या है कि बेचारों को उनको अपना शेल्टर ही नहीं मिलता, जिससे कि विदाउट शेल्टर बाद में वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और इन द लास्ट कि उनको अच्छे से फूड नहीं मिलता, अच्छे से शेल्टर नहीं मिलता, तो वाइल्ड लाइफ भी कम हो जाती है. एंड द सेकेंड डिफॉरेस्ट्रेशन. डिफॉरेस्ट्रेशन द सेम थिंग दैट ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज, कि ड्यू टू ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, और क्लाइमेटिक चेंज आने से क्या है कि जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो रही है. और सेकेंड थिंग क्या है कि जो ये जो हैबिटेट की जो हैबिटेट है, जो शेल्टर है, वो अच्छे से प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो रहा है एनिमल्स को. एंड द नेक्स्ट थिंग सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन ऑल्सो is a problem that is means arise due to this interference. So soil erosion, we know very well that when we cut the vegetation, जो upper part है soil का, that lose their fertility. Okay, और वो फिर क्या है, जो soil है वो lose हो जाती है, वो easily erode हो जाती है. And the next forest fire. और forest fire कैसे कि जैसे हम कहीं ट्रिप पर जाते हैं किसी फॉरेस्ट एरिया में, सपोज हम ध्यान ना रखें, हम कहीं पर आग लगाए और उसको बिना बुझाए ऐसे ही चले जाए वहाँ से, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो आग जो फॉरेस्ट जो साइड वाला एरिया है वो सब पकड़ लेंगे आग, और इससे बहुत सारा जो फॉरेस्ट है वो मीन्स जो फॉरेस्ट एरिया है, जो बहुत सारे ट्रीज हैं वो जल जाते हैं. तो जो फॉरेस्ट फायर है, इट इज ऑल्सो हैपन, एंड ड्यू टू दिस ऑल्सो द वेजिटेशन, दिस वेजिटेशन इज डिक्रीज्ड. एंड नेक्स्ट सुनामी, लैंडस्लाइड. सो मीन्स लैंडस्लाइड, सुनामी, सोइल इरोजन, these problems arise due to the decreases of vegetation and wildlife. And our next thing, poaching. अब poaching क्या होता है, kidnapping of the wild animals. और wild animals की kidnapping क्यों करेंगे, because मीन्स इलीगल, उनको इलीगल तरीके से उनको पकड़ लेते हैं, किडनैप कर देते हैं, फिर क्या करते हैं उनको मार देते हैं. जैसे जो एलिफेंट होता है उसका टीथ, और ठीक है कुछ जैसे उनके होर्न होते हैं, उनकी हाइट्स होती है, जिससे कि वो अपने मीन्स दूसरे मटेरियल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो अपने बेनिफिट के लिए जो ह्यूमन्स है वो यूज़ करते हैं. सो पॉचिंग ऑल्सो बिकॉज जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको वो यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज के लिए. सो इससे क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है दे डिक्रीजेस डे बाई डे. सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स दोज these means vegetation and wildlife face. Now all these problems arise why, due to human activities, due to human interference. So these all human made and natural factors are responsible for the extinction and harming of vegetation and wildlife. Means in some of these natural and some of human activities ना, like हमारा जो forest fire है, okay, poaching है. So due to these factors, these vegetation and wildlife, इनके सामने बहुत बड़ा एक खतरा है कि वो ख़त्म होने के लाइन पर आ चुके हैं. So we have to conserve these vegetation and wildlife. Now the question is this, how, that what are the steps has been taken by the government to conserve these wildlife and vegetation. Means in forest area को जो animals हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट आर दी स्टेप्स दोज हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दोज स्टेप्स. सो हाउ कैन वी कंजर्व. नाउ फर्स्ट, नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर आर मेड. मीन्स गवर्नमेंट्स ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए हैं, नेचुरल पार्क्स बनाए हैं, ठीक है, बायोस्फीयर्स बनाए हैं. सो अब ये क्या है, नेशनल पार्क. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या होता है कि एक जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसकी बाउंड्री, जिसको मार्क किया जाता है कि ये स्पेसिफिक जो है यहाँ पर किसी भी मीन्स सेटलमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा, ना ही कोई इंडस्ट्री बनाएगा वहाँ पे, ना ही कोई हाउसेज अलाउड है, और वो पार्टिकुलर एरिया सिर्फ एनिमल्स के लिए, वेजिटेशन के लिए उसको फ्री रखा गया है, तो उनके लिए छोड़ दिया गया है कि यहाँ पर जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो बहुत कम हो, ठीक है, कि बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस की कि वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो ग्रो करे और जो वहाँ पर एनिमल्स है वो अच्छे से रह सके. सो दीज आर दी स्टेप्स दोज टेकन बाय द गवर्नमेंट. सो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर, दीज ऑल आर सेम बट इन डिफरेंस इज देयर अकॉर्डिंग टू साइज. जैसे जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, मीन्स वहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो स्पीसीज होती हैं मीन्स इनकी एनिमल्स की वो भी बहुत ज़्यादा होती है. बायोस्फीयर्स जो होते हैं हमारे वो
इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, ठीक है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जुड़े हुए होते हैं. सो सी फर्स्ट इज दिस मीन्स नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर आर मेड बाय द गवर्नमेंट. एंड द सेकेंड स्टेप व्हाट कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स. नाउ क्रीक्स मीन्स जो वाटर सोर्सेज होते हैं, मीन्स जहाँ से वाटर मिलता है, बिकॉज जो वेजिटेशन है दे नीड वाटर, एनिमल्स दे नीड वाटर. सो सबसे पहले क्या है कि जितने भी क्रीक्स जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनको कंजर्व करना. सेकेंड लेक्स एंड वेटलैंड, और जो लेक्स होती हैं उनको भी कंजर्व करना, जो वेटलैंड है उनको भी, ताकि जो हमारी वेजिटेशन वो अच्छे से ग्रो करे और जो एनिमल्स है उनको उनके लिए वाटर मिले. सो सेकेंड स्टेप इज दिस. एंड थर्ड अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड. नाउ एंड थर्ड स्टेप व्हाट that has been taken by the government, that awareness programs. अब awareness program start किए हैं गवर्नमेंट ने to conserve these vegetation and wildlife. अब उसमें कौन कौन से, जैसे फॉरेस्ट्री है, ठीक है, और वन महोत्सव मीन्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराया गया है. एक फेस्टिवल के मीन्स एक फेस्टिवल के फॉर्म में उसको सेलिब्रेट करते हैं जिसमें कि बहुत सारे वेजिटेशन को ग्रो किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है, लोगों को अवेयर कराया जाता है कि how they are important, means vegetation and animals for us. So we have to grow more and more vegetation and we have to protect this wildlife, means animals also. And the next legal backing against killing of animals, जैसे कि poaching we have learned earlier also कि poaching जो kidnapping करते हैं अपने benefit के लिए, उनके बॉडी पार्ट को सेल करने के लिए, उनसे अदर थिंग्स बनाने के लिए, तो उन पे बेकिंग होनी चाहिए, मीन्स लीगल बेकिंग अगेंस्ट किलिंग ऑफ एनिमल्स, की जो एनिमल्स को किल करते हैं, ठीक है, हंटिंग करते हैं, तो हंटिंग पे बैन लगाना चाहिए, उनके मीन्स अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना चाहिए. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स बाय अडॉप्टिंग दीज ऑल मेथड्स वी कैन कंजर्व दिस वेजिटेशन एंड एनिमल्स. नाउ वन institution is there that sites. Now it is a good example for conserving these vegetation and animals. So what is the full form of these sites? Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. अब फ्लोरा मीन्स हमारे जो फ्लोरा में क्या आता है, हमारा प्लांट्स और ट्रीज मीन्स वेजिटेशन, एंड फोना में हमारे आती है वाइल्ड लाइफ मीन्स एनिमल्स. सो साइट्स क्या है, एक कन्वेंशन मीन्स एक इंटरनेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन है जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो स्पीसीज हैं फोना और फ्लोरा, मीन्स जो स्पीसीज हमारी है, वेजिटेशन है या एनिमल्स है, जिनको ख़त्म होने का, जिन पे डर है कि ये ख़त्म हो जाएंगी, तो उनके ट्रेडिंग के मीन्स ट्रेडिंग के बेस पर उनको देखना कि जो स्पीसीज कम हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको कंजर्व करना, चाहे उसमें हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, चाहे उसमें हमारी वेजिटेशन आ जाती है. तो ये क्या है, साइट्स इंटरनेशनल लेवल पर देखता है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्पीसीज कम होती जा रही है उनकी हंटिंग पे बैन लगा दी जाती है, ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, उनको स्पेशल अलग से इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है. सो सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट्स. सो ये क्या है, साइट्स क्या है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है बिटवीन governments of different countries at international level. And the second, ensure that international trade of flora and fauna does not threaten their survival. मीन्स ये क्या इंश्योरिटी दिलाता है इंटरनेशनल लेवल पर कि जो फ्लोरा एंड फना है कि उसको इंटरनेशनल ट्रेड से मीन्स उनके ख़त्म होने का उनको डर ना हो, कि ख़त्म होने से उनको बचाया जाए, कि ऐसा ना हो कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से हम उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर दें. तो ये सब कुछ ध्यान रखता है मीन्स ये इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस साइट्स दैट रफली वी कैन से दैट 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल and 28,000 species of plants are protected under it. मीन्स 5000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स जिनका ख़त्म होने का बिल्कुल डर है कि वे ख़त्म हो सकती हैं अगर हमने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए इनको यूज़ किया. तो साइट्स मीन्स ये इंस्टीट्यूशन है, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर है ये, तो उन्होंने उन स्पीसीज पर बैन लगा दिया कि अब इनको हंट नहीं करना है, ठीक है, इनको कोई किल नहीं करेगा. एंड द सेकेंड 28,000 species of plants or 28,000 species of plants को. So up to here it is clear beta. So now this chapter is finished. So I hope you all have understand this chapter. Now if we talk about from the starting, so in this chapter we have learned about land resource, land conservation, soil resource,
soil conservation, water resource, water conservation, and the next thing, this vegetation and wildlife and their problems and the conservation method. So all these things we have learned in this chapter. So now it is your homework that you will read again this chapter. You will go throughout this chapter, and in the next lecture I will take test. Okay, so your online test will be there tomorrow. So you will read again this chapter. So if you want to take screenshot, then take please.